Good afternoon, students. So today we are here to discuss the prelims booster for 23rd of March 2022. With this, I also want to announce that CS Mentor, they have started their pre-mains integrated batch. So in this batch, we are discussing the topics regarding to UPSC or your APCS. And I assure you, standing on this platform in a social media, the teaching quality of CS Mentors is equivalent to Delhi. So if you will attend classes in CS Mentors, I will assure you, your notes, classes, everything will be as per the standards of Delhi. So with this announcement, I want to start the prelims booster or the important news for 23rd of March 2022. So let's start. Number one. First is Xi Jinping and Putin meeting. See, now Xi Jinping and Putin, they are meeting for the first time after Russia invaded Ukraine. And this meeting is significant as we people have already discussed that International Criminal Court, they have issued a warrant against the Russian President Putin. Now the question is, what is the significance of this meeting? So see, number one, we will talk about why Russia-China relationship matters to Beijing. Now see, from security point of view. From security point of view, you must understand that Russia is the biggest partner of China, or Russia is the biggest neighbor of China. So from security point of view, and even China, they have their adverse relations with United States as well as with what, West. So China कहीं ना कहीं रशिया की सपोर्ट देखता है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सी, अब जो चाइना के जो नेबर्स हैं, जैसे नेबर्स अजरबैजान, मंगोलिया और अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज विच इज शेयरिंग बॉर्डर विद चाइना, अभी भी रशिया का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस काफी है. सो चाइना को रशिया की जरूरत पड़ती है टू मेंटेन देयर रिलेशंस विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज. बस ये इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी. तो रशिया के पास बहुत सारा तेल है, रशिया के पास बहुत सारी नेचुरल गैस है, and to sustain the Chinese economy, China can have good amount of oil and gas from what? Russia. And even Russia is also a market for China's manufacturing and technology. अगर चाइना कोई प्रोडक्ट बनाता है, China is having huge market in Russia. Now see, strategic is you need to understand the strategic relation with a triangle. Now this is a triangle of US, China and Russia. Now US is having strained relations with China, Russia is having strained relations with US. Hence China and Russia, they are looking towards each other so as to counter the US and so as to counter the Western powers. Now come to see message to the non-Western world. So message to the non-Western world is China अब अपनी एक तरह की पावर दिखा रहा है. चाइना ये चाहता है कि I am also powerful with Russia, and hence it is not very easy to mend China as well as Russia. Now see, does China want to end the war? इसके बारे में we cannot say, but जो international experts हैं, जो columnists हैं, जो researchers हैं, वो ये चाहते हैं, उनका ये मानना है कि China do not want to end this war. And what could be the reason? See, अब चाइना को लगता है कि जब तक रशिया उस वॉर में इन्वॉल्व है तो रशिया की एनर्जी वहीं खर्च की जाएगी. रशिया वीक होगा पॉलिटिकली, मिलिटरली एंड इकोनॉमिकली. अब आपको पता है दिस वर्ल्ड इज जनरली बाइपोलर. वन इज यूएस एंड सेकंड इज रशिया, एंड चाइना आल्सो वांट टू बिकम अ सुपर पावर. सो अगर रशिया कमजोर होगा, सो देयर विल बी अ वॉइड, एंड दिस वॉइड कैन बी फिल्ड बाय व्हाट? चाइना. So China is looking for an opportunity to become a bigger country or to become a superpower if Russia इस war में क्या रहता है? Engage रहता है. Second, diversion of the United States attention and resources. अब चाइना ये मानता है कि जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है या जो जिसके साथ मेरे एडवर्स रिलेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स है. अब इस टाइम पे जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जो नेटो पावर्स हैं, जो वेस्ट है,
They are already engaged in what? They are already engaged in war with Ukraine. So they are उनकी जो attention है that is towards Ukraine. And China कहता है जब उनकी attention यूक्रेन की तरफ है तो मेरी तरफ वो कम ध्यान देंगे and I will do whatever I want to do. Now see rising Chinese role. अब चाइना वैसे भी geopolitics जैसे we discussed earlier also, China also mediated between Iran and Saudi Arabia. सो चाइना भी अब ये कह रहा है कि अब इंटरनेशनल फोरम्स में, इंटरनेशनल मीटिंग्स में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कि चाइनीज रोल क्या हो बढ़े. तो चाइना इज सीइंग इटसेल्फ एज अ पावर और वो ये चाहता है कि मेरे को वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करे एज अ सुपर पावर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इशू. सी नेक्स्ट इशू इज अर्थक्वेक. अभी देखा होगा आपने कि जो नॉर्थ इंडिया है या जो एनसीआर, दिल्ली एनसीआर है, पंजाब, हरियाणा, रिसेंटली दे फेल्ट व्हाट? दे फेल्ट ट्रेमर्स और उसको बोला गया अर्थक्वेक. Now see this news is that important कि earthquake you have to link it with the static slates. अब जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो जनरल स्टडीज में तो earthquake आपको पढ़ाया जाता है जियोमॉर्फोलॉजी, प्रीलिम में भी पढ़ाया जाता है और मेंस में भी पढ़ाया जाता है. Now what is earthquake? Earthquake एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि earthquake means shaking of earth. It is shaking of earth. अब earthquake के reasons can be natural or these reasons can be anthropogenic. So reasons can be natural or reasons can be what? Anthropogenic. जैसे natural. So what comes in natural? Like this is earth. Earth is made up of rocks. These rocks are not static. These rocks are dynamic in nature. और इस अर्थ के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस रहता है. अब जब टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस रहता है तो these rocks, कुछ रॉक्स एक्सपैंड कर रहे हैं, कुछ रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अब जब रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर रहे हैं तो एक दूसरे में वो फंस जाते हैं. जब एक दूसरे में वो रॉक्स फंस जाते हैं तो अब रॉक्स सी now these rocks they are locked among each other. अब ये रॉक यहां से नीचे 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 ऐसा मुड़ना शुरू कर देते हैं, meaning thereby these rocks is storing the energy. अब एक ऐसा टाइम होता है कि इस रॉक की इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाती है. जब इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो इस जगह से ये रॉक टूट जाता है और ये जो एनर्जी रॉक्स में है ये एनर्जी अब रिलीज हो जाती है in the form of waves. And these waves they cause the shaking of earth which is known as what is your earthquake. So when we will read general studies geomorphology we will talk about seismic waves, we will talk about earthquake. अब see इसमें जो टर्मिनोलॉजी है this is अर्थ के अंदर यहां से रॉक टूटा तो जहां से रॉक टूटा this point is known as focus. अब ये वेव यहां से रिलीज हुई, यहां से रिलीज हुई, ऐसे रिलीज हुई. हमने कहा कि ये वेव सबसे पहले यहां पे आई. This point on the surface of earth, it is known as epicenter. अब यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जब ये अर्थक्वेक आया तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, अर्थ कितना शेक हुआ, और इंटेंसिटी होती है कि उस एनर्जी रिलीज होने से, उस शेकिंग से कितना नुकसान हुआ. दैट इज नोन एज इंटेंसिटी. सो मैग्नीट्यूड वी मेजर फ्रॉम रिक्टर स्केल and intensity we measure through what? Mercalli scale. अब ऐसा होता है कि अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो हो सकता है इंटेंसिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. जैसे इन डेवलप्ड कंट्रीज, इन डेवलप्ड कंट्रीज मैग्नीट्यूड ज्यादा हो बट इंटेंसिटी कम होती है. बट इन डेवलपिंग कंट्रीज सच एज नेपाल, सच एज इंडिया, वहां पे मैग्नीट्यूड कम होता है बट वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, डैमेज ज्यादा हो जाता है. अब सी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, अब इंडिया में जो अर्थक्वेक जोन्स हैं आप उसको 4 to 5 सीस्मिक जोन्स में आप उसको बांटते हो और जो सबसे कॉमन आपका अर्थक्वेक जोन्स हैं दैट इज दिस योर हिमालयास. और आपको पता होगा ये जो हिमालयास हैं ऊपर देयर इज एन यूरेशियन प्लेट एंड नीचे देयर इज व्हाट इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. And there is a convergence. These two plates they are colliding with each other, and due to this collision,
देयर आर द चांसेस कि रॉक टूटे और अर्थक्वेक आए. So this is all about your earthquake which is mentioned in this PDF. Now come to the next part. Next is your Candida auris. See, this is a fungus. ये करती है इन्फेक्शन. ये इन्फेक्शन एनिमल्स में भी करती है और ये इन्फेक्शन ह्यूमंस में भी करती है और इसको हम बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन. और इससे एक बीमारी होती है which is not mentioned here, which is known as candidiasis. अब होता क्या है इसमें, जो बड़ा इशू है, the bigger issue which you can get in your mains examination also, that is this drug resistance क्या है. So I will make a one full video on drug resistance so that you can understand what is the meaning of drug resistance. तो अभी ये जो कैंडिडा ऑरिस है, ये जो फंगस है, कहा जा रहा है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत तेजी से फैल रही है एंड इट इज अ ड्रग रेजिस्टेंट. ड्रग रेजिस्टेंट का मतलब ये हुआ इस बीमारी के लिए जितनी ड्रग्स हैं ये इन फंगस उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है. सो दिस इज व्हाट इज योर ड्रग रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शन. और इट इज वेरी हार्ड टू डायग्नोस क्योंकि इसके जो सिम्टम होते हैं वो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज जैसे ही होते हैं. तो इसको डिटेक्ट करना, डायग्नोस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जहां पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, वहां पे दिस फंगस इफ इट कम्स हियर तो दिस कैन क्रिएट अ पब्लिक हेल्थ इशू. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज योर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी. अब इसमें आपको समझना है व्हेन यू विल रीड इकोनॉमिक्स इन योर preliminary or mains examination, you will read about IMF. IMF is a international monetary fund. ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इसमें कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं और इसका मेन जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है जो कंट्रीज जिनमें इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम आ गया, मेनली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब हुआ तब ये उनको फंडिंग करते हैं. इस फंडिंग से इंडिया ने भी पैसा लिया है 1980s क्योंकि इंडिया में भी करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम्स हुई थी. इंडिया में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था. तो ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली दे हैव गिवन अ फैसिलिटी और अ लोन ऑफ $3 बिलियन टू श्रीलंका ताकि श्रीलंका अपनी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे बेल आउट हो सके, उससे बाहर निकल सके, अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस ला सके, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग में रिफॉर्म, ये सब कुछ ला सके और श्रीलंका इस इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या आ सके, बाहर आ सके. सो दिस इज व्हाट इज योर IMF. अब देखो फ्रॉम अ मेंस पर्सपेक्टिव, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज IMF, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ IMF. अब IMF में वोटिंग राइट्स किसके ज्यादा हैं? अगर किसी कंट्री लेट्स से USA के पास वोटिंग राइट्स ज्यादा हैं, उसके क्या इंपैक्ट है? अब ये श्रीलंका को हार्ड लोन दे रहा है कि सॉफ्ट लोन दे रहा है? इंडिया को लोन कब मिलेगा? क्या हमें IMF से लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? व्हाइट पेपर ऑफ IMF क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं? तो अगर आप इस इशू को इन टोटलिटी पढ़ोगे तो आपका प्री और आपका मेंस दोनों इजी होना शुरू हो जाएगा. In nutshell, you have to link the basic news with that of the current issues. Now coming to the next news. So next news is a INS Androth. और ये क्या है? ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है और ये बनाया किसने है? ये बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हेडक्वार्टर्ड इन कलकत्ता और ये इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है. इसका मेन काम आपको सिर्फ इतना याद रखना है, INS Androth. आपको ये पूछा जाएगा ये क्या है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ शैलो वाटर क्राफ्ट और इसका मेन काम होगा जो आपकी सबमरीन्स हैं उसको डिटेक्ट करना और उसको न्यूट्रलाइज करना. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको आप लिंक करो मेंस में. तो मेंस में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कोस्ट है. This coast is of around 7516 kilometer. See, this you will read in geography. This you will read in your current affairs. What is this coastal security? This will come in your internal security.
So whenever you have to read an issue, you have to integrate geography with internal security, with that of economy, with that of current issues. Then you will develop a holistic understanding of a concept. So this is what is your INS Androth. Now coming to the next news. So next news is long-tailed ducks. तो अभी बोला गया ये जो long-tailed ducks हैं, जो IUCN के अकॉर्डिंग वल्नरेबल हैं, ये एक तरह की माइग्रेटरी स्पीशीज हैं। जब ये माइग्रेटरी स्पीशीज है तो अभी अभी बोला गया कि ये देखी गई है नियर वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। सी वुलर लेक, जब आप जनरल स्टडीज प्रिलिमिनरी पढ़ते हो तो वुलर लेक आता है। वुलर लेक इज अ फ्रेश वाटर लेक, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। ये है जम्मू एंड कश्मीर में। और वुलर लेक से आपकी एक रिवर शुरू होती है बाय द नेम व्हाट, वेरी नियर टू वुलर लेक देयर इज अ प्लेस बाय द नेम वेरीनाग। वेरीनाग से एक आपकी रिवर शुरू होती है बाय द नेम झेलम। और ये झेलम वुलर लेक फिर बनती है झेलम। देन झेलम कम्स इनटू अ कश्मीर वैली। झेलम के ऊपर है एक इंपॉर्टेंट शहर बाय द नेम श्रीनगर। और श्रीनगर में जो झेलम है वो बनाती है ऐसे करके मियांडर। और एक लेक श्रीनगर में है विच इज एन ऑक्सबो लेक ऑफ रिवर झेलम। दिस इज नोन एज डल लेक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक ऑफ कश्मीर। सो दिस इज अबाउट योर वुलर लेक। तो अगर प्री में आपको कोई वुलर लेक के बारे में पूछेगा तो यही पूछेगा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वुलर लेक कहां है, कश्मीर में है। कौन सी रिवर वुलर लेक से आ रही है, झेलम आ रही है। कहां से आ रही है, वेरीनाग से आ रही है। झेलम रिवर के ऊपर कौन सा शहर है, श्रीनगर का शहर। श्रीनगर में एक लेक और है जिसका नाम है डल लेक। डल लेक इज एन ऑक्सबो लेक ऑफ व्हाट, ऑक्सबो लेक ऑफ रिवर झेलम। This is what is mentioned in NCERT. This is what can be asked in your examination, either in preliminary or either through what, mains examination. So coming to the next news. So next news is National Chambal Century. See, again a news from geography or environment. अब ये बनाई गई सेंचुरी, और ये सेंचुरी इसलिए बनाई गई है क्योंकि यहाँ पे हमारे क्रिटिकल एंडेंजर्ड घड़ियाल है। तो ये जो आपके घड़ियाल है ये एक तरह की क्रोकोडाइल की स्पीशीज है, और जो हमारे घड़ियाल है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और ये आपको जो घड़ियाल है ये आपको एक चंबल रिवर सिस्टम में मिलते हैं। चंबल जो रिवर है दिस इज ये 3 स्टेट से चलती है। इसका ओरिजिन कहीं पे मध्य प्रदेश में है, फिर ये थोड़ा सा राजस्थान में जाती है, देन इट क्रॉसेस टू यूपी एंड देन इट जॉइंस रिवर यमुना। चंबल रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो काली सिंध है, पार्वती है। शिप्रा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चंबल, और शिप्रा रिवर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट शहर है जहां पे कुंभ मेला भी लगता है, उज्जैन। सो अभी हमने क्या किया, इस पूरे चंबल रिवर को वी हैव रिगार्डेड इट एज अ सेंचुरी। जब हमने उसको रिगार्ड किया तो हमने उसको एक तरह का इन सीटू कंजर्वेशन कर रहे हैं इकोसिस्टम का, एनिमल्स का। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब जो घड़ियाल का उसका नेचुरल हैबिटेट है उसी में उसको बचाया जा रहा है। और चंबल रिवर के ऊपर आपके 2-3 डैम्स हैं, जैसे राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर, गांधी सागर। सो दीज 3-4 डैम्स इज ऑन रिवर चंबल। सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज रिवर कोठारी। सो इसमें बस आपको ये याद रखना है, ये एक रिवर है, it joins river Banas. So it's a tributary of river Banas. ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपका गुजरात और राजस्थान में रहती है। अभी हमने यहाँ पे एक इशू भी क्रिएट किया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सी व्हाट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? इट इज आल्सो नोन एज ग्रीन कोर्ट। इट इज ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है, ट्रिब्यूनल यू विल रीड इन जीएस मेंस पेपर 2 आल्सो, पॉलिटी, और उसमें एक बड़ा क्वेश्चन है ट्रिब्यूनलाइजेशन। ट्रिब्यूनल होता है कोर्ट, एक स्पेसिफिक कोर्ट। अगर आप देखोगे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट सारे काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के, सोसाइटी के, इकोनॉमी के, सर्विस मैटर्स के, क्रिमिनल के, सिविल लॉ के। अब आपने एक स्पेशल कोर्ट क्रिएट किया फॉर एनवायरमेंटल लॉज,
सो दैट इन्वायरमेंटल जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस, जो लोग क्लाइमेट से पीड़ित हैं उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले. सो दिस इज व्हाट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. इट इज क्रिएटेड बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010. इसमें टोटल 15 मेंबर्स होंगे. इसका जो चेयरमैन होगा, इसका जो ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन होगा, ही शुड बी द सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और इसका कोई वो नहीं है कि ये कैसे काम करेगा. इट डू नॉट वर्क अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, इट डू नॉट वर्क अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और अ सिविल प्रोसीजर कोड. इसका जो काम करने का ढंग है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. एक बारी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मेंबर बनेगा या उसका चेयरमैन बनेगा, वो दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं ले सकता है. और ये आपके बहुत सारे एक्ट्स जो एनवायरनमेंट के लिए आपने बनाए, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, उसके ऊपर इसकी जुरिसडिक्शन है. और कुछ ऐसे भी एक्ट हैं जो इसके परव्यू में नहीं आते हैं. एंड इसका हेडक्वार्टर, इसका एक हेडक्वार्टर है और उसके 3-4 रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं. भोपाल में, बॉम्बे में, चेन्नई में, कलकत्ता में, एंड वन हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़. So next news is Down syndrome. So Down syndrome is a disease. और इसमें क्या होता है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ह्यूमन जो पॉपुलेशन है, इसमें वी हैव अराउंड 46 क्रोमोसोम्स. इसमें क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी होती है. एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं. क्रोमोसोम इज लाइक दिस इज इन पेयर. 21st क्रोमोसोम. सो जो 21st क्रोमोसोम है उसमें एक और एक्स्ट्रा लग जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी. ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, दिस लीड्स टू व्हाट योर डाउन सिंड्रोम. और ये वर्ड है सिंड्रोम. सिंड्रोम का मतलब ये होता है व्हेन यू हैव मल्टीपल डिजीजेस. तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसकी फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन होती है, उसकी बॉडी डेवलप नहीं कर पाती है, उसको न्यूरोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. और ये जो पेशेंट्स होते हैं उनका सोसाइटी में इनकलकेट होना या सोसाइटी में उनका आना बड़ा मुश्किल होता है. तो दिस इज व्हाट इज योर डाउन सिंड्रोम. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज सैंडलवुड बुद्धा स्टैच्यू. तो अभी यस्टरडे वी डिस्कस्ड द जापानीज प्राइम मिनिस्टर, ही केम टू इंडिया. अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको एक स्टैच्यू दिया. वो स्टैच्यू क्या है, सैंडलवुड का स्टैच्यू है. उसमें जो बुद्ध है, देखो बुद्धा की ना बहुत सारी मुद्राएं हैं, जैसे ये मुद्रा, ध्यान मुद्रा. अब द डिफरेंट मुद्रास ऑफ बुद्धिज्म और द डिफरेंट मुद्रा ऑफ बुद्ध, ये आप पढ़ते हो आर्ट एंड कल्चर में. और इसमें ये बताया जाता है कि हर मुद्रा का एक स्पेसिफिक मैसेज है. जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, भूमि स्पर्श मुद्रा का क्या मतलब है. भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या होता है कि जो बुद्ध ऐसे करके बैठे होते हैं और उनका जो हाथ है ऐसे करके भूमि पे लगा होता है, अर्थ पे लगा होता है. और वो ये कह रहे हैं कि देखो मैंने मेडिटेशन अचीव कर ली है, मैंने भगवान को पा लिया है, और आओ और इसको विटनेस करो. और वो धरती को बोल रहे हैं कि देखो यू बिकम द विटनेस ऑफ माय सैल्वेशन. दिस इज व्हाट इज भूमि स्पर्श मुद्रा. So in our class we will be discussing all the mudras. When we will be discussing with art and culture, there is around 12 to 15 mudras related to Buddha. So what is this ध्यान मुद्रा? ध्यान मुद्रा ये है कि जब बुद्ध आपका बोधि ट्री के पीछे वो वहां पे क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा के बैठे हुए हैं. उनके हाथ ऐसे करके फोल्डेड है जैसे योगिक पोस्चर में है. दिस इज व्हाट इज योर ध्यान मुद्रा. ठीक है. और जो बुद्ध है, इसको सैल्वेशन कहां मिली थी, कौन से शहर में मिली थी, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर एंशिएंट हिस्ट्री. अब क्वेश्चन है सैंडलवुड. अब सैंडलवुड एक तरह का ट्री है. दिस बिलोंग्स टू अ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट. दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. See, they will not ask you a direct question कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जापानीज प्राइम मिनिस्टर को क्या दिया. अब उसने जो दिया उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं. लाइक दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट मुद्रा, दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन इन एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू सैंडलवुड. तो सैंडलवुड एक फॉरेस्ट है, एक टाइप का ये ट्री है जो आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलता है.
और इंडिया में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, द पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु. सो दिस इज एन एरिया ऑफ योर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट. और इसीलिए वहां पे सैंडलवुड या चंदन की लकड़ी की तस्करी बहुत है. और आपने एक गैंगस्टर भी सुना होगा बाय द नेम वीरप्पन. सो वो भी जो तस्करी करता था वो सैंडलवुड की करता था. इवन रिसेंटली एक मूवी भी रिलीज हुई थी बाय द नेम पुष्पा, उसमें भी जो स्मगलिंग हो रही है वो सैंडलवुड की हुई. सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट स्पीशीज. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज. नेक्स्ट न्यूज इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1865 में बनी थी और इसका उस टाइम पे टेलीग्राफ होता था. टेलीग्राफ ये होता था. जैसे जैसे टेलीकम्युनिकेशन बढ़ा, टेलीग्राफ, फोन कॉल्स, इंटरनेट एक्सेट्रा, तो इसका परव्यू भी बढ़ा. इसका मेन काम है कैसे इस टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस के लिए अच्छा करना है, इस टेक्नोलॉजी के जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे कम करना है, टेक्नोलॉजी को कैसे ह्यूमन के बेनिफिट में लेकर आना है. और इसका हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड. एंड इंडिया इज आल्सो अ मेंबर ऑफ व्हाट? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. और ये याद रखना, दिस इज अ यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी. सो दिस एंड्स विद द करंट इश्यूज फॉर टुडे. You can solve the related MCQs so that you can understand the concept better. Thank you.